Good evening, everyone. Welcome to PP Corner Live presents Hairspiration. I'm Kanishka Ramchandani, the editor of Professional Beauty India, and I'm very happy to present to you Hair That Inspires. So throughout this week, we'll be showcasing you different aspects of hair and giving you hands-on training. Today, our session is dedicated to getting smoother hair, and that's why we have with us our expert for today, Najib Ur Rahman, the brand ambassador of Kera Smooth by Godrej Professional, who's going to talk to us about how to switch to smooth hair. Hi, Najib. Hi, How are good you evening. How doing? are you? Very Very well, well. very well. Thank you, Najib. Thank you for joining us today. And I'm very excited to know about Kera Smooth from you. So, what's the session going to be all about? Yes, Kaniksa, I'm also very excited. And I'll tell you, it would be out and out like a training session. So it would be half like information, and then, half it would be hands on. Right. And I have my gorgeous model right now. I will show it to you. And Okay. then obviously the treatment starts from a shampoo. So then I will send it to you. I mean, I will send the girl to the shampoo. And Yeah. उसके बाद में फिर हम वापस आके ये तमाम प्रोडक्ट जो मेरे पास गॉडरेज के कैरा स्मूथ प्रोडक्ट्स हैं तो मैं Yeah. उसके बारे में बताऊंगा Okay. और जैसे कि कैराटीन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है किसी भी सलोन में G. because not every time a client comes for all the straightening and rebonding and everything. Sometimes or like after a chemical treatment, they want extra shine. They want anti-frizz, like frizz ना हो बाल में G. और बाल में इलास्टिसिटी बढ़ जाए तो इन तमाम चीजों को करने के लिए वी हैव केरास्मूथ ऑफ कोर्स द केराटिन ट्रीटमेंट फ्रॉम Godrej. Yeah. And one of the best part about Kera Smooth that why I have chosen Kera Smooth to be represent Kera Smooth is because एक तो देखिए शायद इंडिया में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि किसी कंपनी ने केराटिन का इनिशिएटिव लिया है. Right. All the multinationals they are not having it right now. तो Yeah. यहाँ पे Godrej ने जैसे ये इनिशिएटिव लिया है and in fact I tried, tested and I tried number of times and then I was very satisfied with the results. In fact क्योंकि ज्यादातर जो है आपने देखा होगा केराटिन जो है अमेरिकन है बीट whatever. So ये the research and development everything is over here in India. And that is, I think, primarily the decision that I have taken to be a part of Godrej Kera Smooth. And today I will be doing a little bit of training, and I will be talking about all the products of Kera Smooth. That is what I'll be doing. Okay, so I was actually talking about keratin, so I thought it's a good idea, once the network issue was there, to show you that what I'm doing today. Okay. That's my beautiful, gorgeous model Neon. And Hi. one side, she's saying hi to you. Okay. Now, just see one side we have already done the Okay. Kera Smooth. Yeah. Along with the ironing we have done. So this is Right. like done for the day. This part. Okay. Now this is her natural texture. You can see the natural texture is quite frizzy, and Yes. also it is quite processed at the end. Yeah. Okay, so you can see the ends over here, and then you do the ends. You can see the difference, how smooth, how shiny the end becomes. So Right. that's her natural texture, and this is how a little bit frizzy this texture is. This is her natural texture, and also like what I have done. This is in the process. So in the meantime, I thought let me just apply something. Yeah. So I have Anuj also with me from Godrej. Anuj, can you just say hi to Kanishka? That's Anuj. I think you have to come into the frame. Yeah. Hi, Kanishka. Hi. So Anuj is helping me today, from Right. Godrej, and he's the assistant manager for technical in Godrej. Great. Fantastic. Thanks, So, Anuj. Thanks. Najib, what I'm going to do is get off the screen and give you the full share of the screen, but I'll be in the Wow. background and I'll ask Okay. you questions and also take up No questions problem. from the audience on Facebook. Okay?
Perfect. That is perfectly fine. Now, what Yeah. I'm doing right now is the first part is the pH shampoo that we will be doing, Okay. because this treatment actually starts from the shampooing. मतलब ये treatment start ही होता है shampoo से, because Yeah. उससे क्या होता है, cuticle layer को हम थोड़ा swell कराते हैं. Okay. Right. So this is like pH plus shampoo. So right now she will go for the shampoo, and then we will be talking about, we'll start talking about the products and the development and everything. And then in the meantime, she'll come back and then we'll start this. Then you can give All me right. full screen or however you Okay. say. Great. Yeah. Let's talk about the products then. Excellent. Yes. So I'll give her the pH plus shampoo. This is the first shampoo that we will be doing. This is a clarifying shampoo basically. So what it does is, like, we have to do it twice or thrice depending upon the hair. So if the hair is fragile, if the hair is totally processed, then it would be once this shampoo, and then of course you have to take the recharge shampoo or milder shampoo. Otherwise, on Yeah. virgin hair, you can do it twice or thrice so that the cuticle layer basically swells better. Okay, so I'm Okay. giving her this shampoo, and then you can just go get your shampoo done. And in the meantime, then we can talk about the product. Right. So, as I said, like, this treatment actually starts from shampoo. अच्छा, सबसे अच्छी बात इसमें ये है that the treatment is very simple. Treatment is Okay. extremely simple. You know, and when I say simple, I mean to say that obviously you need to know कि उसका technical reformation क्या है, उसका chemical reformation क्या है, वो कैसे काम करता है, ये तमाम चीजें हर हेयर को जाननी चाहिए. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये ट्रीटमेंट जो है ये बहुत ही सिंपल है. एंड आई थिंक कंपनी ने, ये गोदरेज ने काफी एक अच्छा ये इनिशिएटिव किया है कि लाइक इट्स नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि पहले ये लगाओ उसके बाद ऐसा करो, ये सब कुछ है. पहले शैम्पूइंग है और उसके बाद में फिर जो ट्रीटमेंट है वो मेन ये केरा स्मूथ ट्रीटमेंट है. दिस इज द मेन ट्रीटमेंट बेसिकली, जिसको हम केराटिन ट्रीटमेंट कहते हैं. Now, this keratin treatment is basically a lamination. मतलब जैसे हम लैमिनेशन कराते हैं, तो अगर हमारा कॉर्टेक्स और क्यूटिकल अच्छा है, इट्स अ क्यूटिकल ट्रीटमेंट मेजरली. एंड यू नो व्हाट वी डू इज, जब भी हम कोई भी जैसे भी हमारे बाल हैं, तो क्यूटिकल लेयर को ये एक लैमिनेट कर देता है. और लैमिनेशन से क्या होता है कि इट गिव्स एक्स्ट्रा स्मूथ लाइक रिफ्लेक्ट. तो जैसे जैसे ये केराटिन है, कि आपको मालूम है केराटिन से हमारा बाल बना हुआ है, 95% केराटिन हमारा. और ये भी जैसे केराटिन है, तो अगर कुछ मिसिंग केराटिन है, मिसिंग इन द सेंस के किसी भी सूरत से, चाहे वो एनवायरमेंटल डैमेज है या कोई केमिकल डैमेज है या मैकेनिकल डैमेज है, जो कि ब्लो ड्राई से, आयरन से, इस तरह से ज्यादा रिगरस करने से हो जाता है, तो इन तमाम डैमेजेस पर और इन तमाम प्रोसेसेस पर दिस ट्रीटमेंट वर्क्स वेरी वेल. ओके. और सबसे पहली बात ये है कि ये जो है टोटली इट गिव्स यू अ फ्रिज फ्री हेयर. फ्रिज फ्री हेयर. तो जैसे ही आपको मालूम है, अगर फ्रिज फ्री होगा बाल, तो बाल शाइनी हो जाएगा. और जैसे ही वो शाइनी होगा, तो शाइनी होने से क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज या कुछ भी रेज पड़ती है, इफ द सरफेस is smooth, then it reflects back. So then, और इसके जो ingredients भी हैं, इसमें काफी ऐसे antioxidants जैसे असाई ऑयल वगैरह हम लोग इसमें यूज करते हैं. तो we use a lot of antioxidants also in this. Okay. तो जो ये main treatment है, the Kera Smooth treatment. तो ये treatment के अंदर like you have moisturizing complex. And of course, you have carbocysteine and amino acids. Okay. Now, see, as I said, हमारे बाल जो हैं वो केराटिन से बने हुए हैं. तो जब हम एडिशनल केराटिन बाल में डालते हैं, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली रिप्लेनिश करता है नेचुरल केराटिन को. It replenishes our natural keratin, and that is why, like, if you see the elasticity, it becomes better. Getting my point? So that you are strengthening the hair. You are basically strengthening the hair. Okay. And of course, apart from strengthening, then you are basically giving it shine and frizz-free result as well. So
काफी इसलिए लोगों को काफी पसंद आता है ट्रीटमेंट, और आई थिंक हर सैलून में आजकल केराटिन ट्रीटमेंट होता है, एंड दिस बिल्कुल। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट। इनफैक्ट स्पा करने के बाद, जैसे कुछ हम स्पा करते हैं, स्पा करने के बाद क्या होता है, जब हम रेगुलरली स्पा कर रहे हैं तो हम क्लाइंट को ये भी बताते हैं कि नाउ देयर इज अ ट्रीटमेंट कॉल्ड जैसे केरास्मूथ और केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि क्या होता है कि इट प्रोलॉन्ग्स योर स्पा ऑल्सो। मतलब जैसे जैसे आपके बाल का जो इलास्टिसिटी है या उसका जो कंडीशन है वो बेटर होता जाएगा, उतना ही बाल और अच्छा होता जाएगा। आई मीन ऑब्वियसली इफ यू वांट टू ट्राई आउट मोर let's say treatment, you can try out more treatment, otherwise like the hair looks extremely healthy when you get this keratin thing done. Okay, so हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे शैम्पू करके आएंगे तो शैम्पू करने के बाद मैं साथ साथ उसको लगाऊंगा भी। और एक इसका लगाने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है, आजकल जैसे हाइजीन और सेफ्टी के ऊपर काफी हम लोग फोकस कर रहे हैं, और जैसे गॉडरेज ने भी एक सुरक्षा कैंपेन भी किया था और इस तरह से है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रश इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर हम एक एप्लीकेटर बॉटल, सॉरी आई एम जस्ट मिसिंग द स्क्रीन, बट जस्ट टू पिक अप दिस बॉटल, और ये जो है ये अपना एप्लीकेटर बॉटल है। ओके, तो हम लोग इसमें मेजरमेंट करके, मेजरमेंट से देखकर हम इसको लगाएंगे, और लगाने के बाद अगर हमारा इसमें बच जाता है थोड़ा सा तो हम इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं जिससे कि लाइक हवा अंदर नहीं जाए, राइट? बिकॉज इफ द एयर गोज इनसाइड देन व्हाट हैपेंस, बिकॉज अगर आपने लगाया कुछ प्रोडक्ट बच गया आपका, तो क्या होता है वापस या तो लोग डालते हैं उसके अंदर या फेंकते हैं उसको, और इन दोनों केसेस में एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप उसको लगाते हो, प्रोडक्ट को जब आप लगाओगे तो बड़ी आसानी से आप इसके थ्रू लगा सकते हो। मैं ये दिखाऊंगा अभी, और ये मैं नंबर 2, ये जो केरास्मूथ है नंबर 2 ट्रीटमेंट, ये इसमें डालकर, and then I will be putting it, and then emulsifying and combing, and I'll do and show it to you. Now एक बार वो आपने लगा दिया, उसके बाद हम उसको तकरीबन 20 minutes to half an hour रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हेयर। तो एक बार लगाने के बाद फिर से हम लोग लाइक वी कैन टॉक, वी कैन टेक क्वेश्चंस, वी कैन टेक डू व्हाटएवर। तो पहले हम लगाएंगे, अभी वो आ जाते हैं तो हम लगा के अब फिर करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको ड्राई करते हैं कंप्लीटली, और उसके बाद फिर हम आयनिंग स्टार्ट करते हैं जी। तो ये प्रोसेस में बेसिकली क्या है कि लाइक विद हीट you are pushing the keratin inside the cuticle, right? और इसमें हीट का इतना important aspect है हीट का, because right now we are using temperature control line, everyone uses that, but how many people like they regulate, like suppose यहाँ तक का बाल अगर हमारा virgin है तो उसके ऊपर obviously उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई आप ले सकते हो, लेकिन अगर नीचे बाल अगर हमारे प्रोसेस केमिकली ट्रीटेड है या डैमेज है सो टू से, तो उसमें इसलिए मैंने इसमें ट्रिम भी नहीं किया अभी तक। तो उसमें क्या होता है कि नीचे जो है आपको कम टेम्परेचर से आयन करना होता है। रिमेंबर इफ द हेयर इज वर्जिन और इफ द हेयर इज हेल्दी, आई वुड से so then you can take a little higher temperature in your temperature control iron, और अगर नीचे बाल थोड़ा सा प्रोसेस है या डैमेज है तो उसमें जो टेम्परेचर है उसको आप रिड्यूस करोगे और फिर आप करोगे, क्योंकि उसमें इतना जरूरत है नहीं, क्यूटिकल लेयर उसमें ऑलरेडी खुला हुआ है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने बोला कि इजी ट्रीटमेंट है, लेकिन इजी ट्रीटमेंट का ये मतलब नहीं है कि इसके निटी-ग्रिटीज नहीं है, उसके निटी-ग्रिटीज बिल्कुल है, और वो निटी-ग्रिटीज जो है वो तमाम स्टाइलिस्ट को पता होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई लाइक even Godrej has a very strong technical team, तो जहाँ पे भी कहीं अगर ट्रेनिंग की दरकार होती है या like if somebody requires that sort of thing, so we definitely incorporate technical training also. Okay, right. So I'm on to number 2, and the model is also here. So what I'll do is I'll start hands-on, and then when I'm sending her for the processing time, then we can talk more about the products, the questions. Everything. Sure. Okay. Sure.
Yeah. Okay, so Come over on, to then. you. I'm going off screen as of now, and I'll come back Yes. and we can have our interaction. Yes. 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 Okay. Okay. No problem. No problem. Okay. So now, so what I'm doing right now, I'm taking number 2. Can you hold it? And what I'm doing is, I am just putting it inside. See, there is a measurement. इसमें यहाँ पे measurement भी है जो कि तकरीबन 40 से स्टार्ट होता है. तो अभी मेरे पास खाली एक ही सेक्शन है, तो मैं इसमें 10 या 15 ml मैक्सिमम लूंगा और इसको तो ये मैंने इसके अंदर ले लिया है. एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज, थैंक यू वेरी मच. तो इसको मैं बिफोर आई पुट इट, तो ये मैंने इसमें निकाल लिया है. लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें जो टेक्सचर है, ये 2 टेक्सचर हैं. देखिएगा, दिस इज बेसिकली कलर्ड. अ लिटिल बिट ऑफ हिना इज ऑल्सो देयर. ऊपर में हिना है, कलर है, और नीचे जो है वो आप देखेंगे काफी प्रोसेस्ड हेयर है. ओके, दिस इज ब्लीच्ड हेयर, so this is quite processed hair. So right now what I'll do is I'll just drape her first, and uske baad mein then I will be putting the acai oil onto the processed texture. This portion you have done that, Anuj? Okay. So I'm just draping her right now, and after that what we will do is we will treat the process section first with this acai oil. Okay, and this acai oil is basically, like, it strengthens the hair, and the other factor, the major factor, is it has a lot of antioxidants. Your acai as a fruit has got a lot of antioxidants. Okay, so what I'm doing right now is Anuj, can you hold? Yeah. So let me just wear the glove, and then we will start. So remember, जब भी बाल अगर में 2 टेक्सचर हैं, इस तरह के 2 टेक्सचर बने हुए हैं, तो उसमें आप ध्यान रखिए कि नीचे जो है, यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारा, ये देखिएगा ऐसे ड्राइनेस है, और इट इज एक्सट्रीमली पोरस. ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन ऐसे निकालेंगे, और उसमें ऐसे असाई ऑयल लेंगे, उसका 2 ड्रॉप से 3 ड्रॉप आप लेंगे, और उसके बाद जस्ट इमल्सिफाइड ऑन योर हैंड एंड देन अप्लाई, जस्ट अप्लाई इट एट द एंड. जैसे मैंने आपको बताया कि हिना वाले बाल भी है, ऊपर थोड़ा सा हिना है बाल में, और उसके अलावा कलर भी है, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसमें हो सकता है क्यूटिकल लेयर ऑलरेडी टाइटली पैक्ड हो. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्यूटिकल जैसे अगर स्वेल करी है थोड़ा, तो हम लोग इसको अभी बंद नहीं करेंगे. तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बेसिकली पहले असाई ऑयल लगाएंगे, और हम कहाँ पे लगा रहे हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोसेस. So you can just see तो आप देखिएगा एंड्स पे मैंने बिल्कुल लगा दिया है. और कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट इज नॉट रेडी टू गेट अ हेयर कट. मतलब क्लाइंट बोलता है कि नहीं, मेरे को हेयर कट नहीं कराना है, और आप इसके अंदर मुझको कुछ करके दीजिए. और अगर आप केराटिन भी करते हैं या कुछ भी आप करते हैं, तो मेरे एंड्स भी स्मूथ होने चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए ये असाई ऑयल जो है वो एक बहुत अच्छी चीज है. और जैसे मैंने आपको बताया, वर्जिन हेयर के ऊपर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन डेफिनेटली फॉर कलर्ड हेयर, फॉर प्रोसेस्ड हेयर, फॉर स्मूथन्ड हेयर आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी.
Okay, and these are not very heavy oil. So acai is rich with antioxidants, and it creates a lot of strength in hair. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इसको लगाता जा रहा हूँ और उसको emulsify करके, and then I'm just doing a little bit of combing as well into it. Okay, here, and then the last section. One drop, and see, it's very nice. Like, you know, the spreadability is very, very good. So just apply it all over. And then like that. Okay, so once we are done with this, now we will apply our number 2. Okay, and now see, I can run my comb. This is how the combability becomes. जो combability है, देखिए कितना सुधर गई है उसमें. पहले अगर comb भी नहीं हो रहा था, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें असाई ऑयल लगाया है और शैम्पू या नंबर 1 जो क्लैरिफाइंग शैम्पू है वो किया है. कैन वी पुट क्लैरिफाइंग शैम्पू ओवर हियर प्लीज? तो आप देखिएगा, तो लेकिन आप इसको कोम कर सकते हो. ओके, तो इट्स वेरी इजी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको, ये बाल जो है ये तकरीबन 100% ड्राई होना चाहिए. ओके, तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बाल जो है गीला है, तो आप उसको पहले अप टू 100% ड्राई कर लीजिए. ओके, so now what we are doing is, now see it's already dry, so I'm not drying it. और देखिएगा जब आप ऐसे देखते हैं तो it would be very very easy to applicate. तो आप ये देखिएगा, ये एप्लीकेटर बॉटल है और इसमें मैंने नंबर 2 डाला है और इसको नोजल को ऐसे सीधा करके, and then what I'm doing is higher than me. Yeah, not better. Okay, और उसको देखिएगा बहुत इजीली आप लगा सकते हो. You just push this and apply it like this. Very good. और उसको आपने क्या करना है, इमल्सिफाई करना है. Right from the roots. This is not on the roots. This is from the roots. तो आप देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ और उसके बाद what I'm doing is I am combing. तो आप देखिएगा कोम्बिंग करने से क्या होगा कि जो आपका केराटिन है वो तमाम जगह पर फैल जाएगा. ये देखिए, इजीली it will go all over. Okay, then you take it again, take a horizontal section. Okay, after this horizontal section, comb it, and then take your applicator bottle, put your hand underneath, and you just go like this. Just put a zigzag, zigzag way, और उसको फिर आप इमल्सिफाई करिए और इमल्सिफाई करने के बाद you can just leave it down. कोम अच्छे से कर दीजिए ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट बहुत अच्छे से हो जाए प्रोडक्ट. So carry on with the rest of the section. So आप ये देखिएगा, this is probably the second last section for me. अच्छा, एक और अच्छी बात इसमें ये है कि because we are keeping it for almost like half an hour, 20 minutes to half an hour, तो इसमें थोड़ा थोड़ा बाल स्ट्रेट भी हो जाता है. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कितना % बाल स्ट्रेट हो जाता है या कितनी, सॉरी, तो इसमें क्या होता है, तकरीबन up to 50% we say, up to 50% it basically straightens the hair. And straightens the hair in the sense कि जब आप देखो बाल अगर फ्रिज फ्री रहेगा तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेट ही दिखेगा. तो ज्यादातर आप देखेंगे वेव्स का प्रॉब्लम क्या होता है, वेव्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसमें आप देखेंगे फ्रिज बहुत होता है और फ्रिज की वजह से
वो बहुत ज्यादा वेवी दिखता है। आप देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, जैसे ये वेव है, so you can see this and then I can just put a little bit of this thing and apply it literally onto this wave. Okay, so just apply and then comb it. So just to make sure that the product basically goes everywhere, okay, wherever you want to apply, and comb it nicely. Boils to the, yeah, one more section and then it would be the last section. Okay, so then, और इस तरह से आप काफी प्रोडक्ट भी सेव करते हैं। अगर इमेजिन अगर आपको ब्रश से लगाना पड़े तो एवरी टाइम यू आर पुटिंग द ब्रश इनसाइड द केराटिन एंड again and again you are like applying. So this application is also very unique, and not only just unique, but I think in today's scenario where the client comes and asks for everything, this is how do you apply, how do you do keratin, और जब आपको मैं इसको ड्राई करेंगे, हम लोग ड्राई करेंगे और आयन करेंगे, तो आप देखिएगा इतना ज्यादा उसमें स्मोक, या लोगों को ऐसा लगता है कि केराटिन जो है वो आंखों में चुभता है काफी ज्यादा, और इसमें आप देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है. विल आस्क अवर मॉडल नियॉन, how is she feeling, while getting done this thing. Definitely we will be talking to her as well. Okay, so this is how I applied the product. So this section is done. Now what we have to do is we need to cover this. Okay, now we need to cover this. How to cover? You need to just put a clean film, and clean film लगाकर आप उसको 20 minutes to half an hour छोड़ सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, तो 20 minutes to half an hour जब आप इसको छोड़ोगे तो ऑब्वियसली जो वेव है वो भी हल्का सा रिलैक्स हो जाएगा. Okay, so sometimes is it people say that is it like straightening? No, it is not like straightening. Straightening is different process, and keratin is definitely different process. Okay, so client gets confused sometimes, so then stylist should tell them that no, this is not a straightening product. This is basically anti-frizz or lamination on hair, and that's how this process basically a little bit. If I'm not happy with the ends, अच्छा आप एक बात देखिएगा कि सारे बाल पे आपको प्रोडक्ट अभी नजर आ रहा है, लेकिन एंड्स के ऊपर दिखेगा it's all gone. So just to make sure that the product should be there, I'll just apply it a little bit, just one drop or something, not too much. Okay, now we'll just take the clean film and we will just put it from underneath. Okay, so we'll just take the clean film and cover it. इससे ये रहता है कवर करने से कि जो प्रोसेसिंग है वो इवन हो जाती है. The processing of this product would be evened out. तो हम यहाँ लगा देते हैं. Maybe just like that. Okay. And just one more on to the top. तो इसको completely थोड़ा सा कवर कर दीजिए. देखिए, this is the different thing what we have in Kerasmooth, that we need to cover it so that the process can become better and evened out. Oops. So इसको आप so clean film, just cover it down
यहाँ पे पूरा ऐसे तो जस्ट कवर कर दीजिए लाइक दैट। ओके, सो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने असाई ऑयल लगाया है जहां पे बाल काफी प्रोसेस थे और आपने देखा था कि एंड्स कितने ज्यादा प्रोसेस थे, अप टू अ डैमेज कंडीशन ऑफ डैमेज थे। तो वहां पे मैंने सबसे पहले असाई ऑयल लगाया और उसके बाद मैंने नंबर 2 जो हमारा केरास्मूथ ट्रीटमेंट है वो मैंने लगाया है। और ये नंबर 2 का प्रोसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लगाने के बाद हम लोगों ने इसको कवर कर दिया है, क्लीन फिल्म से कवर करिए, किसी भी तरह बड़े पॉलिथीन से कवर करिए आप। कवर करने के बाद हम इसको 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर छोड़ेंगे। ओके, so Neon, you can sit outside and then so this is the first part, and this first part is very very important, in which आपने देखा सबसे पहले हमने शैम्पू किया और शैम्पू को भी एक बार नहीं हम लोग 2 से 3 मरतबा करते हैं, 2 to 3 times we have to do the shampoo, and this shampoo is a clarifying shampoo especially made for Kerasmooth treatment. So this is the shampoo we have done for her. और उसके बाद में फिर हमने क्या किया, जहां पे केमिकली ट्रीटेड बाल हैं या प्रोसेस बाल हैं वहां पे हम लोग असाई ऑयल लगाएंगे। ओके, असाई ऑयल लगाने के बाद 1-2 मिनट छोड़ेंगे उसको। इतने आप क्या करेंगे, नंबर 2 लेकर और फिर आप इस एप्लीकेटर बॉटल में डालेंगे और जब आप काम कर चुकेंगे तो एप्लीकेटर बॉटल के अंदर अगर प्रोडक्ट बचा है तो वो अभी अच्छा है, दोबारा से क्लाइंट आएगा, आप दोबारा से उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं नंबर 2 जो है एप्लीकेटर बॉटल में डालकर एंड देन आई हैव अप्लाइड इट इवन आउट। अच्छा, अब इसमें बहुत ज्यादा थिक एप्लीकेशन नहीं करना है। What you need to do is you need to do drop. So take section by section and use, or let's say apply the product in a very optimum quantity. I'm not saying that should be too much or should be too less. इसमें खाली आपने ड्रॉप करेंगे, इसकी जो स्प्रेडेबिलिटी जिसको बोलते हैं, जो जैसे प्रोडक्ट फैलता है तो उसकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो स्प्रेडेबिलिटी अगर अच्छी है तो क्या होता है, जब आप उसको इमल्सिफाई करेंगे तो इमल्सिफाई करने के बाद देन यू विल अप्लाई। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जब हम शैम्पू करते हैं उसको आपने 80 to 100% ड्राई करना है। देखिए, जब आप ड्राई बाल के ऊपर प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपका जो रिजल्ट है दैट वुड बी वेरी वेरी ओके। सो ज्यादातर 80% to 100% ड्राई हो, उसके बाद आप लगाएं। और आपने देखा कैसे मैंने एप्लीकेशन किया है, वो एप्लीकेशन आपने नंबर 2 से करना है। ओके, अब ये देखिए, ये जो केराटिन का नंबर 2 है, तो इसमें 2-3 चीजें हैं। जैसे एक तो सबसे पहली बात यह है कि फॉर्मेल्डिहाइड फ्री है। आपने देखा होगा कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है एंड द मोमेंट यू सजेस्ट केराटिन टू हर, they say, is it safe? And you say, why do you say so? You say, नहीं, हमने सुना है कि उसमें बहुत सारा धुआं होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और इसलिए हम लोग this is why we are asking. And you say, no problem ma'am, there is no problem at all. And जब ये फॉर्मेल्डिहाइड फ्री है, एंड देन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट है ऐसा जो जिससे कि that can be harmful, that can be we are worrying about. तो हम ही लोगों को बताते हैं कि वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है मैम, और ये फॉर्मेल्डिहाइड फ्री प्रोडक्ट है, और फॉर्मेल्डिहाइड फ्री जैसे ही आप बोलते हो तो क्लाइंट कहता है ओके। एंड समटाइम्स द क्लाइंट आल्सो आस्क दैट व्हाट इज देयर इन प्लेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड जैसा, फॉर्मेल्डिहाइड इज बेसिकली अ गैस। जो फॉर्मेल्डिहाइड क्या काम करता है, किसी भी प्रोटीन सब्सटेंस को वो
प्रोटेक्ट करता है, जैसे नेल्स हैं, जैसे हमारा बॉडी है, या जैसे हमारा स्किन है, इसी तरह बाल भी है। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली इट हैड फॉर्मल्डिहाइड वे बैक, बट नाउ सिंस द टेक्नोलॉजी इज सो गुड, तो इसमें मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें शिया बटर रहता है, जिसमें व्हीट जर्म ऑयल रहता है, और जिसमें अमीनो एसिड्स रहते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, आपके बाल में जाके नेचुरल प्रोटीन्स को, नेचुरल प्रोटीन्स को क्या होता है, उसको वो और व्हाट टू से उसको और रिचार्ज करते हैं। इट बेसिकली गिव्स एडेड बूस्ट टू इट, सो व्हेन यू टॉक अबाउट एडेड बूस्ट, तो आप देखेंगे अगर बाल ड्राई हैं या बाल फ्रिजी हैं या बाल किसी किस्म से थोड़ा सा प्रोसेस्ड हैं, तो ऐसा कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे उसके बाल में स्ट्रेंथ आए। और डेफिनेटली केरा स्मूथ में you have all these things which are very, very good, and this is the technical manual that we have, and under which obviously keratin, amino acids and everything, and this is what it says, moisturizing complex, under which you have shea butter, hydrolyzed keratin, and of course wheat germ and panthenol. So you can say that everything is basically what to say, gives you moisture in hair, moisture in hair. So then, when we talk about moisture, so this is what is required by the hair if the hair is processed. Okay, so ये जो number 2 है, basically इस number 2 में एक तो formaldehyde free है, दूसरा इसमें मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा। मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स में जैसे मैंने आपको बताया, शिया बटर, व्हीट जर्म ऑयल, पैंथेनॉल, अमीनो एसिड्स। तो ये क्या काम करते हैं, हमारे जो टेक्सचर है, हमारे टेक्सचर को और ज्यादा ये बेटर करता है, हमारे टेक्सचर को और ज्यादा मजबूत करता है। तो आपको मालूम है, हेयर इज एन इलास्टिसिटी, तो अगर बाल में आप इलास्टिसिटी कम होगा तो क्या होता है, तो बाल जो है बेसिकली it will break. Okay, so now when you are putting acai oil and when you have these kind of moisturizing treatments majorly, so majorly what they will do is not only it will frizz free your hair, but also it will give you a lot of strength as well. Okay, so once we are done with that, then we will dry it, and after drying we will be ironing the hair. Okay, I'll show it to you after 20 minutes, because we will be taking it out in 20 minutes. So maybe 15-20 minutes we will do today, because it is just this part, because we have already done. तो ये सेशन के हिसाब से ये हमने मॉडल किया था, तो ये नंबर 2 मैंने लगा दिया है। उसके बाद आपके पास जब क्लाइंट वापस आएगा, आपको 24 घंटे के बाद क्लाइंट को वापस बुलाना है, और क्लाइंट को वापस बुलाने के बाद में आप उनको शैम्पू करोगे। तो केराटिन रिपेयर शैम्पू नंबर 3, जो आप पहले आयरन करोगे और आयरन करने के बाद शैम्पू करोगे। जैसे ज्यादातर स्टाइलिस्ट को पता रहता है कि जब आप केराटिन का शैम्पू करते हो तो उससे पहले आप क्या करते हो, उससे पहले आप आयरन करते हो। आयरन क्यों करते हो आप दोबारा, कि जो आपने केराटिन का लगाया था, बिकॉज यू आर इन्फ्यूजिंग द केराटिन इन हेयर विद द हेल्प ऑफ आयरनिंग। तो वो आयरनिंग से यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर पुटिंग इट बैक अगेन। अगर कुछ ऊपर क्यूटिकल, क्योंकि ये क्यूटिकल लेयर के ऊपर ही है, तो जब आप दोबारा से उसको आयरन करते हो तो क्या होता है, और ज्यादा वो स्मूथ होता है। और उसके बाद फिर आपने थोड़ा रुकना है, ओके, और रुकने के बाद मे बी 5 to 10 मिनट, और उसके बाद फिर आप अपना शैम्पू कर सकते हैं। अच्छा, शैम्पू में भी यू हैव 2 चॉइसेस, और दोनों जो हैं these are non-SLS, बिकॉज आपको पता है जो सोडियम लॉरेट सल्फेट है वो क्या कर सकता है, वो आपके केराटिन का जो कोटिंग है उसको जल्दी से निकाल सकता है। बिकॉज SLS इज अ फोमिंग एजेंट। ओके, SLS क्या है, एक फोमिंग एजेंट है, तो उससे झाग बनता है। आपने देखा होगा जैसे साबुन से झाग बनता है, या शैम्पूज जो होते हैं जिसमें ज्यादा झाग होता है उसमें सोडियम
लॉरिक सल्फेट रहता है। तो ये जो हमारे बाद के दोनों शैम्पूज हैं वो सल्फेट फ्री शैम्पूज हैं, और सल्फेट फ्री शैम्पूज में एक रिपेयर है और एक रिचार्ज है। तो द रिपेयर लुक्स लाइक दिस एंड इट हैज रिटन नंबर 3. So this is also what I like, is that like it's very simple. So 1, 2 and this is 3, you know. और इसमें जो दूसरा बेसिकली शैम्पू है वो कौन सा शैम्पू है, दैट इज द रिचार्ज। और रिचार्ज शैम्पू उन लोगों के लिए है जिनके बाल लगते वर्जिन है और डैमेज नहीं है, ना कलर्ड है, ना प्रीवियसली कोई ट्रीटमेंट है उनका। तो ऐसे बालों के लिए रिचार्ज शैम्पू है और उसका रिचार्ज कंडीशनर है। बट अगर जैसे हमारा अभी मॉडल है, जैसे नियॉन के बाल हैं अभी जैसे हमने किया है, तो इनके बाल में एडेड प्रोटेक्शन भी चाहिए। ओके, सो जब ये हमारे पास कल वापस आएंगे, फर्स्ट शैम्पू के लिए आएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इनको रिपेयर शैम्पू करेंगे। और रिपेयर शैम्पू करने के बाद जब हम इसमें मास्क लगाएंगे, तो दिस इज द मास्क एंड दिस मास्क इज वेरी वेरी गुड। ओके, एंड दिस ऑल्सो हैज शिया बटर। सो यू नो शिया बटर इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन नंबर 2, जो हमारा केरा स्मूथ का प्रोटीन ट्रीटमेंट है, जो नंबर 2 है बेसिकली। उसमें भी आपने देखा कि मॉइस्चराइजिंग जो उसका इंग्रेडिएंट है, मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स, उसका एक मेन जो इंग्रेडिएंट है वो शिया बटर है। एंड सो दिस इज व्हाट वी विल पुट। और अब जैसे इसमें बाल ज्यादा डैमेज है, नाउ वी हैव मोर डैमेज है, यू नो, ऑफन यू मस्ट हैव सीन के डैमेज का भी एक लेवल होता है। यू नो, यू हैव परसेंटेज ऑफ डैमेजेस। नाउ यू हैव लेट्स से once let's say rebonded or colored or any kind of hair, twice, thrice, और ऐसे भी लोग हैं जो के साल में 2-2, 3-3 बार रीबॉन्डिंग कराते हैं, साल में 2 बार कलर कराते हैं, 3 बार कलर कराते हैं, और जो कलर भी होता है वो प्रीलाइटनिंग करने के बाद उसके बाद से करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो आपका डैमेज का जो परसेंटेज है दैट ग्रोज हायर, यू नो। सो इसी तरह से जब वो आगे बढ़ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मल रिपेयर के लिए यू नो दिस इज सफिशिएंट दो, बट इट इज ऑलवेज बेस्ट व्हेन यू आर ट्रीटिंग दिस काइंड ऑफ हेयर, मतलब जो कि बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं या एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, लाइक ओवर प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, बाल जले जले से हैं, और हर सैलून में ऐसा होता ही। Definitely, like you will find these kind of clients in the salon. So that acai oil, you can add it into your this thing number 4, your mask, and then you can apply it, leave it for at least 5 to 10 minutes, and then rinse it off. Okay, so this is how these products are very simple, and every product has got the number system. So you have number 1, number 2, number 3, and of course number 4. Obviously your acai oil is a caring product. So then वो caring product को आपने कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये आप अपने आप decide कर सकते हैं। और definitely when you are adding acai oil at the end or at the processed hair, so then वो आपका जो result है वो काफी level और अच्छा हो जाए। Okay, so these are the products basically, and it's already 15 minutes. So what I'll do is I'll call my model and then I'll start working. Kanishka, do you have any question for me or anything? Yes, Najib, I do have a question for you. You have explained very beautifully about the whole technical aspects of this particular treatment. मुझे ये जानना है कि एक हेयर ड्रेसर को क्या माइंड में रखना चाहिए जब वो इस ट्रीटमेंट के लिए कंसल्टेशन कर रहे हैं। देखिए, जब कंसल्टेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा हम बोलते हैं ना, बेनिफिट्स आर फॉर द क्लाइंट। तो सबसे पहले उनको बेनिफिट पे जाना चाहिए कि इन बालों को देखकर हम लोग उनको क्या दे सकते हैं। लाइक जैसे फ्रिज फ्री है, यू नो, इट वुड बी अ फ्रिज फ्री हेयर। द शाइन विल इम्प्रूव। देखिए, इंडियन मार्केट इज शाइन मार्केट, मतलब कोई भी हो, आप कोई भी पोस्टर देखें, कुछ भी देखें, तो शाइन एक ऐसी चीज है जो कि लाइक यू नो, आई ऑलवेज से दैट इंडिया इज अ शाइन मार्केट। ओके, तो शाइन बढ़ जाएगा, फ्रिज खत्म हो जाएगा, लाइक यू नो, थोड़ा बाल स्ट्रेट लगेंगे, यू नो,
इस तरह के। तो ये 3-4 जो बेनिफिट्स हैं, और सबसे अच्छी बात ये है फॉर्मेल्डिहाइड फ्री है, तो इट डज नॉट हैव एनी फॉर्मेल्डिहाइड, तो टोटली हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो हर हेयर ड्रेसर को याद रखना चाहिए, बिकॉज ये कंसर्न जो है क्लाइंट का बेसिकली वो इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर होता है कि क्या करेगा, कितना स्ट्रेट करेगा, शाइन भी आएगा मेरे बालों में, या मेरे बाल कैसे अच्छे हो जाएंगे, बाउंस कैसा रहेगा। तो और जैसे भी आपका कलर भी है या आपका कोई रिबॉन्डिंग हुआ है बालों में, तो उसके ऊपर आप बखूबी करा सकते हैं उसको। बट थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि अगर किसी को कलर करना है और केराटिन करना है तो कलर थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, मतलब एक लेवल डार्क करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर यूजिंग अ क्लैरिफाइंग शैम्पू एंड नॉट वंस ट्वाइस यू आर डूइंग, तो क्या होता है कि उससे हो सकता है कलर जो है थोड़ा सा लाइट हो जाए। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप पहले कलर कर रहे हैं और केराटिन बाद में कर रहे हैं तो कलर जो है वो एक लेवल डार्क। तो ये Okay. Thank you. Thank you, Najib. Thank you so much. Most welcome. Most welcome. Most welcome. So I'll just call her again, and then I'll start ironing the hair. Yes. Okay? Yes. Okay. Yeah. भेज दो। एंड दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, बहुत सारे लोग ना केराटिन को स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग से कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। या तो ओके, आई नीड माय आयन। हाँ, सो ज्यादातर लोग क्या होता है कि इसको स्मूथनिंग को इससे नहीं ड्राई करना पड़ेगा अभी, और गिव मी दैट ड्रायर आल्सो ना प्लीज। सो देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि जब स्मूथनिंग आप करते हो या रिबॉन्डिंग करते हो तो बाल के बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं, एंड इट वर्क्स इन द कॉर्टेक्स, और फिर आप रीअरेंज करते हो जब आप न्यूट्रलाइजिंग वगैरह करते हो। लेकिन केराटिन में इट इज आउट एंड आउट अ क्यूटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सो जब हम बोलते हैं कि वो बाल सीधा करेगा, यस करेगा, बट बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली कंडीशनड, दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग लाइक दिस। सो इट समटाइम्स स्ट्रेचेस द बॉन्ड ऑल्सो। अगर क्यूटिकल लेयर खुली हुई है डेफिनेटली, या हम जैसे उसको स्वेल करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा पेनिट्रेशन हो सकता है। सो इट समटाइम्स इट स्ट्रेचेस द बॉन्ड। तो वहां पे देखिए जो रिबॉन्डिंग है वो आपका this would be a break of the bond and then rearrangement. This one is out and out a cuticle treatment and it's 100% safe. एंड ये ज्यादातर क्या है, जैसे मैंने 2 चीजें आपको बताया कि एक लेमिनेशन और एक फ्रिज फ्री या एंटी फ्रिज ट्रीटमेंट की तरह हम लोग यूज करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ड्राई कर रहे हैं और ड्राई करने के बाद फिर हम लोग आयन करेंगे। Yeah. Sorry about the noise of the dryer. तो आप देखिए अभी हम जब ड्राई कर रहे हैं तो इसको पैडल ब्रश से आप ड्राई कर लीजिए, और जैसे आप ड्राई करोगे आपको वो स्मूथनेस दिखने लगे। और देखिएगा इसमें बिल्कुल भी स्मोक नहीं है, हमने हालांकि इसमें लगाया आपके सामने, बट आमतौर पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्मोक आता है, और वो स्मोक जो है वो क्लाइंट को काफ़ी, जिसको कहते हैं ना लाइक रेस्टलेस करता है, लेकिन यार इसमें स्मोक क्यों आ रहा है। तो इसमें देखिएगा स्मोक बिल्कुल भी नहीं है, और सिर्फ हल्का सा स्मोक अगर होगा भी तो ऐसा होगा जैसे लाइक जैसे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप करते हैं, बट लाइक देखिए पूरा
फुल स्पीड पर ये ड्रायर है और व्हेन आई एम डूइंग दिस ड्रायर तो देन बिल्कुल भी उसमें कोई स्मोक जैसा कुछ भी नहीं। ये देखिए, तो खाली ड्रायर करने से भी यू कैन सी इट स्टार्ट गेटिंग मैनेजेबल। टेक द नेक्स्ट सेक्शन। और उसके बाद में then you take it again। अच्छा, आप देखिएगा यहाँ पे हल्का सा वेव जो है, वेव भी इससे थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। तो जैसे हमने बोला कि जब आप एंटी फ्रिज इसको कर दोगे तो क्या होगा, ये हल्का सा स्ट्रेट भी दिखने लगेगा। यहाँ से देखिएगा ये इनका वेव्स हैं। और याद रखिए, अगर किसी के वर्जिन बाल हैं तो वर्जिन हेयर के ऊपर थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू कीप इट फॉर लेट्स से ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर। तो आप देखिए, सिर्फ हल्का सा ड्राई करने से ही इट लुक्स क्वाइट मैनेजेबल। इट इज क्वाइट मैनेजेबल। और उसके बाद लास्ट सेक्शन, अभी कुछ टूट रहा है वो टू आएंगे। तो अब देखिए, जैसे जैसे मैं ड्रायर करते जा रहा हूँ तो बाल जो है मैनेजेबल दिख रहे हैं अभी। हालांकि मैंने अभी कुछ आयन नहीं किया है। एंड यू कैन सी हाउ मैनेजेबल इट लुक्स लाइक। तो कीप चेकिंग योर ब्लो ड्राई। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे, आपका जो ब्लो ड्राई भी है, जैसे आप आयन से करते हो, यू हैव टू जस्ट पुट इट at 90 degree. You have to take every section at 90 degree and just do the dry part. तो आप देखिएगा, अभी मैंने सिर्फ इसमें ड्रायर किया है and it starts looking manageable. ओके, एक सबसे अच्छी चीज जो हम देखना चाहेंगे यहाँ पे भी वो एंड्स हैं। आपने देखा था कैसे एकदम एंड्स जो थे वो काफी वायरी थे, तो अभी एक सॉफ्टनेस उसमें आ गई है। और मैंने इसमें कोई अभी कट नहीं किया है, आप देखेंगे मैंने इसमें कुछ कट नहीं किया है, ऐसे ही है बिल्कुल। सो इट लुक्स मच मोर मैनेजेबल एंड सॉफ्ट। ओके, so this is how it looks like. And now what we'll do is I'll ask Anuj also to help me for the ironing, and I need one tail comb as well. Yes. Yes, I hope. Yeah. So when you are taking ironing sections, obviously texture matters. जैसे texture है आपका, ऐसे ही आपको उतना ही सेक्शन आपको लेना पड़ेगा। और इसमें देखिएगा, हमने जैसे आपको शुरू में भी बोला था कि एंड के ऊपर जहाँ पे हमने, इफ यू रिमेम्बर, असाई ऑयल लगाया था, तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल है बेसिकली। तो आप देखिएगा कि यहाँ तक मैं अगर 180 करता हूँ तो यहाँ पे मैं
160 is good enough, you know. तो अगर मैं यहाँ तक 180 करता हूँ, तो what I'll do is, Anuj, you can also come. Yeah. And तो यहाँ तक मैं लाके छोड़ दूंगा उसको, और मैं जो बहुत ज्यादा मेरा फ्रेजाइल पार्ट है उसको मैं नहीं करूंगा अभी, बिकॉज उससे क्या हो सकता है, उससे बाल मेल्ट भी हो सकता है। मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग हीट को यहाँ पे लगाऊंगा, सो रादर देन like you know it is making the hair better, what it can do is it can harm the hair, you know. Leon, just hold me. So 1 inch section, or so it would be like, you know, depending upon the texture, so half an inch to maximum 1 inch. अगर किसी के बाल बहुत पतले हैं तब आप एंड देन आप देखेंगे कि इसको आप यहाँ लाके एंड छोड़ दीजिए, यहाँ लाके इसको ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ लाके छोड़ देंगे। अच्छा, दूसरा बात ये है कि व्हेन यू आर टेकिंग द हेयर, इट हैज टू बी ऑन 90 सो दैट यू नो यहाँ से ये ऐसा डेंट ना पड़े। तो जब आप इसको बिल्कुल 90 पे ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा कि वो रूट से आपका बाल जो है वो एकदम बाउंसी भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा। अदरवाइज क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, रूट से एकदम फ्लैट हो जाता है वो। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही ये लिया एंड देन तो देखिएगा 90 डिग्री और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लोग पूछते हैं कितनी बार हमको ये आयन बाल पे करना चाहिए, मतलब एक स्ट्रैंड पे कितनी बार हमको करना चाहिए। ऐसे तो 12 to 15 टाइम्स वी यूजुअली से, बट इनवेरिएबली 10 से 12 तकरीबन होता ही है। ओके, और जैसे मैं बोलता हूँ कि हमेशा डिपेंड करता है बाल के ऊपर कि कैसा आपका टेक्सचर है। ओके, तो उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो इमेजिन अगर ये टेक्सचर और भी ज्यादा कर्ली होता तो शायद हमको नंबर ऑफ जो स्लाइड्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, वो हमको शायद ज्यादा करनी पड़ती। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्रायर होने के फौरन बाद क्या हुआ, एकदम ये बाल मैनेजेबल से लगने लगे। तो इसलिए इसमें हाफ एन इंच का सेक्शन, और आप देखेंगे इसमें मैंने इसमें गिना तो नहीं, बट आई एम श्योर 8 से 10 बार होगा ही होगा। ओके, बिकॉज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड देन यू नो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो 2-3 स्ट्रोक तो यहीं पर ही लग जाते हैं ऊपर में, और उसके बाद में देन यू जस्ट कम, और जहां पर आपके ये फ्रेजाइल बाल शुरू हो रहे हैं वहां पे आप लाके उसको छोड़ देंगे, यू छोड़ देंगे ऐसे। ये देखिए, और याद रखिए अगर बाल डैमेज है वहां पे आपको बहुत ख्याल रखना है अपनी हीट का, बिकॉज हीट जो है वो क्या काम करता है, वो बाल को मेल्ट भी कर सकता है, यू नो। तो केराटिन के साथ साथ डेफिनेटली व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू चेक दैट यू नो व्हाट टेम्परेचर यू नो वी आर डूइंग आवर आयन। तो जैसा आप आयन करते हो उसको आप देखते रहिए। तो यू कैन सी अभी मैंने यहाँ पे आयन नहीं करी है, बट स्टिल इट लुक्स मैनेजेबल। ओके, ये, और इसमें जो आयनिंग है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है केराटिन ट्रीटमेंट में। सो जब आप आयन करते हो तो आप देखेंगे कि आपका जो सेक्शन है वो आयन की प्लेट से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज ये है दिस विड्थ, इफ यू सी यहाँ पे, तो ये विड्थ जो है वो तकरीबन 3 इंच का होगा, तो आपका सेक्शन जो है वो 2.5 इंच का होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका जो सेक्शन है वो बड़ा होगा उससे क्या होगा,
क्लाइंट के बाल खींचेंगे इधर उधर से। ये ऐसे ही है जैसे कोई भी आप टूल यूज करते हो तो उसका एक लिमिट होता है, और उस लिमिट के ऊपर या बाद में अगर आप करते हो तो क्या होता है, वो बाल साइड से खींचने लगते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज, एंड यू कैन सी हाउ मैनेजेबल एंड नाइस द हेयर लुक। और जैसे भी आपका अगर फॉरवर्ड ग्रेजुएशन है या इसी तरह के कुछ हेयर कट्स हैं, रेजर कट है, कुछ भी है, तो उसके हिसाब से फिर आपने हल्का सा आयन करना है। और अगर जैसे आमतौर पे जो आप देखेंगे एंड्स बाहर की तरफ जाते हैं, तो आप इनको हल्का सा ग्रेजुअल इनवर्ड, ये एक नेचुरल इनवर्ड है, ये इसको हमने डेलिबरेट इनवर्ड नहीं बोलते हैं। ओके, so this is absolutely easy, but like if you do it with all these nitty gritties, I am sure that it will look very very good. And एक सलोन में बेसिकली केराटिन के जो ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, like convincing for a keratin to a client is very easy. Okay, और वो कोई भी कर सकता है, any hairdresser can do it, any stylist can do it, because this is just a protein treatment, this is just a keratin treatment, and जैसे like for the brides या जैसे पैकेजेस वगैरह में हम लोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ब्राइड के बाल हैं वो बिल्कुल शाइन करने चाहिए। तो आप इसको what you can also do is you can just put it in your packages as well. Okay, because this is shine treatment majorly, this is protein treatment for the hair. तो यहाँ पे मैंने ये अपना लास्ट सेक्शन पूरा कर लिया है, और अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि एंड्स जो हैं वो बहुत फ्रेजाइल हैं, तो सिर्फ इसको एंड्स पर मैं अपना टेम्परेचर जो है वो डाउन कर लूंगा, और इसको बहुत आसानी से और बहुत इजीली, बहुत ज्यादा मैं इसको ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं, देखिएगा, इसको सीधा यहाँ पे मैं सिंपली ऐसा कर रहा हूं, और उसके बाद देन व्हाट आई डू इज, अब देखिएगा इसका जो टेम्परेचर है इसको मैं और मिनिमम मतलब आई एम जस्ट मिनिमाइजिंग इट, और ये तकरीबन 170 हो गया है। इट कैन ऑल्सो बी 160 बिकॉज आई एम फीलिंग दैट ये वाला बाल जो है वो काफी ज्यादा फ्रेजाइल है, so you can see it is quite fragile, so that's why I'm just taking Anuj, I'm taking 150, okay, not even okay. तो जैसे मैंने आपको बताया, जो हीट है वो उसका वो बहुत मैटर करता है बाल के टेक्सचर या बाल की हेल्थ के लिए। तो इसलिए इसमें आप देखिएगा कि मिनिमम हीट, बिकॉज इसको खाली हमने पहुंचाना है, तो इसलिए हम लोग इसको सिर्फ 150 या 160 मैक्सिमम आप इसको कर सकते हैं। ओके, so just like that, and just maybe 1 or 2 sections, and then we are done with this. So this is my last section, and here, तो आप देखिएगा इसमें जो एंड्स हैं, जैसे भी एंड से मैंने बिल्कुल उसको कट नहीं किया है, मैं इसको बाद में हल्का सा ट्रिम कर सकता हूँ, ओके, बट आई जस्ट हैव टू चेक दैट वेदर इट्स रिक्वायर्ड और नॉट। मतलब हार्डली मुझे लगता है कि, और आप देखिएगा 150 में भी वो काफी ज्यादा शाइनिंग और लाइक ऐसा स्ट्रेट फॉल कर रहे हैं 150, so 150, 160, and that's how like you will be just using. Okay, so can I take the bottom one?
Okay. Okay, just hold it, please. Thanks. Yeah. So see, Anuj is also doing. What I'll do is now I'll take this part. You can see the ends और ends पे हम लोग बहुत लो टेम्परेचर से 150 पे हम लोग इसको आयन कर रहे हैं. तो अनुज जो है that is 180 you are doing 170 ऊपर. तो आपने देखा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर भी हालांकि कलर्ड है लेकिन थोड़ा हिना भी है. तो आप देख सकते हैं कि ये 170 180 संभाल सकता है. और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लेकिन एंड्स नहीं संभाल सकते हैं किसी सूरत से. तो एंड्स पर हम लोगों को बहुत लाइटली करना पड़ेगा. तो ये देखिएगा जस्ट 150 डिग्री. और अगर आप इसको देखिए ऊपर भी लेकर आएंगे तो इसमें कुछ वो नहीं है. it will just refresh, let's say, the last ironing of yours. Yeah, and this is our, yeah. तो आप देखिएगा जब भी आप आयन करते हैं तो आयन में प्लेट बहुत मैटर करती हैं. और ये टाइटेनियम प्लेट्स हैं. तो इसी तरह और भी तमाम प्लेट्स आती है. तो यू हैव टू सी व्हाट गिव्स यू शाइन. आई मीन ऐसा ना हो कि like it's just getting stuck or something. So I'll take this section. Yeah. So which is unacceptable. So we'll do the last section now. Yeah. This is my second last. Great. So now see the top part, we are doing it with a little high temperature, which is 180, and that too is also not very high, I would say, because अगर आप 210 या 200 डिग्री पे करते हो तो वो थोड़ा हाई माना जाता है. बट वो आप जब ही करोगे जब आपके बाल वर्जिन होंगे. मतलब it is not chemically treated or it is not something like and curl भी काफी होगा. So that sort of texture you will have to do with the little high temperature. And Anuj also is doing his last section now, and then we will just do a final retouch with 150 degrees, and finally we'll just apply the acai oil onto it. Kanishka, any question for me? Yes, Najib. You have pretty much answered all my queries while explaining the process and the product. So, okay. Yeah, technically, no, there are no more questions. But I would like to know from your model, how does she feel about this treatment? Okay. How did you feel about the treatment? You like it? No, I really like it because my hair was totally damaged. Okay. And she's. I was actually amazed when I met her. She has done this color herself, Kanishka. Okay. Wow. And I was quite amazed. I said, "Wow," and I didn't say that you didn't do it professionally or whatever it is, but this is how she has done. And I think the lockdown. This is the lockdown effect. And I think in the lockdown, people have become more creative, so this she has done. And one more point, which I was also explaining while doing this thing, that not only just the color she has, but she also has henna coating on it.
Okay. तो हिना वाले बालों पे फ्रिज आना बहुत इजी है, मतलब जो Right. जो हिना वाले बाल होते हैं उसमें क्या होता है, कोटिंग होती है, तो हाँ. जितना कोटिंग होता जाएगा उतना फ्रिज बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है बाल। तो हाँ. ऐसे बालों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, एंड आई मीन दैट्स व्हाई वी सिलेक्टेड हर। इन फैक्ट शी हैड कलर, शी हैड हिना, एंड शी Yeah. आल्सो हैड दिस reach. So Right. that's what, and she said, I've done it herself. Wow. तो कैसे किया, मैंने बोला मैं कैसे किया, तो बोलते I've applied with the foil. I said wow. अच्छा, अभी इन्हें घर जाके क्या केयर करना चाहिए? हाँ, अब इनको बेसिकली बहुत ज्यादा टाइटली इसको बांधना नहीं है। Okay. इनको बहुत ज्यादा ट्विस्ट करके अभी फिलहाल कल तक एटलीस्ट 24 आवर्स इसको बांधना नहीं है और ट्विस्ट Okay. नहीं करना है, और बस और तो कुछ भी नहीं है, और तो कुछ भी नहीं है। बस इनको जो वॉश करना है वो हाँ. इन्होंने करना है रिपेयर शैम्पू, ये जो केरा केयर शैम्पू है, और जो इसका मास्क है ये Okay. इनको लगाना है। हालांकि ये Okay. पहली बार जो है वो सलोन में आएंगे, तो जब जी. सलोन में आएंगे तो मैं इनको और एक्सप्लेन कर दूंगा, और घर पे भी उसके बाद में भी फिर ये रिपेयर शैम्पू और रिपेयर मास्क लगाएंगे। Okay. Okay. Yeah. So I'll just show you that how the hair looks now, and you can see I'm using a very thin comb, and Yeah. I'm able to do the combing now. मतलब पहले जो था मैं इसमें बिल्कुल comb नहीं कर पा रहा था. Now you can see ऐसा बहुत पतला वाला comb है ये. So you can Yes. see now it's a very very thin comb. Thank you, Anuj. तो आप देखिएगा I'm able to do this thing very nicely. और finally अभी जब मैंने ये कर लिया है, so you can see now the frizz is almost gone. You can see Absolutely. from the hair, and you can Yes. see the shine. You can now see a little color, little henna, everything you can see right now. Okay, Yeah. so when you're doing it on colored hair, when you're doing it on any kind of hair, the only thing is the color needs to be a little deeper, so that Yeah. half level here and there, like we can manage. But उसके बाद में आप कुछ भी आप करोगे तो वो बिल्कुल फ्रिज फ्री रहेगा। और लास्ट में बस मैं ये इसको असाई ऑयल Okay. लेकर और 2 बूंद एज अ सीरम मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो आप देखिएगा ये केयर भी है और फिनिश भी है। Right. तो पहले मैंने It's केयर giving के लिए that लगाया था। super glossy effect. यस 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 यस। और इसमें अब जैसे बाहर भी जाएंगे तो क्योंकि असाई ऑयल जो है लाइक इट इज रिच विद एंटीऑक्सीडेंट्स, तो कलर वगैरह में भी प्रोटेक्शन इसमें रहेगी। ठीक है, Okay. और इनका जो केराटिन है उसको भी ये काफी प्रोटेक्ट करेगा। Okay. You can see it's giving shine, and now she's free. The entire treatment takes about 2 hours, 1.5 to 2 Okay. hours, depending upon the length. Right. So this is quite significant length. If the Yes. length is short, then you take lesser time, and obviously if the length is more, like if your length is quite a bit, then it will take around 2 hours to 25. And what is the approximate cost of this treatment for this hair length? The approximate cost basically depends upon the salon, but actually the short hair normally starts from 5,000. Okay. So Okay. 5,000 onwards, like that. Right. So depending upon the hair length, it is very important to see the hair texture, that how much product you will be using, and how much you will be using, and then decide. But majorly 5,000 is a good amount, 5,000 and beyond. Okay. Najib, any parting advice that you would like to give to hairdressers about this treatment? Any which advice? Advice that you would like to give? Okay. Now see, the thing is, एक तो मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो there is no comparison. Keratin is a different treatment, and straightening or smoothing is a different treatment.
You know, Kera Smooth is different and this one, any other, this thing is different. So don't get confused on that. तो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा इनफैक्ट मैंने जो अपने स्टाइलिस्ट को देखा है, वो they are confused between these two things. And और ये देखिए कि ये ज़्यादातर एंटी फ्रिज ट्रीटमेंट है और like you know it creates lot of shine, lot of gloss in the hair, so that it is kind of lamination to the hair. और ना सिर्फ ये बिल्कुल स्ट्रेट करता है, ये जो Kera Smooth है basically, this will give you shine, this will create lot of texture onto your hair, unlike the smoothing part. तो उसमें वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ये एंटी फ्रिज ट्रीटमेंट है और ये लेमिनेशन वाला ट्रीटमेंट है Kera. Right. Thank you so much for being a part of this session with us and explaining everything so beautifully. और एकदम ही सीधे सीधे शब्दों में आपने बहुत easy explanation दे दिया. I'm sure बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स जो हमें देख रहे हैं बहुत encouraged होंगे ये ट्रीटमेंट ट्राई करने के लिए. And it's a very important treatment for everyone. Thank you very much. Anuj, Kanishka want to say. Yes. Come. And thank you so much, Anuj. And Neon, both of you. Thank you so much, Neon. Thank you very much. Thank you so much, guys. Thank you. Yeah, you take care. Bye bye. Thank you. You too, Kanishka. Thank you very much.